Yes, good morning class. So my previous lecture, that is prove that root 2 is irrational number. Is very most important. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप चाहे इसको रट लीजिए। मेरी बात मानिए, आपको एग्जाम में यही पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रूव दैट root 2 is irrational number. irrational number. आपको कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। आप यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस सपोज रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। और जब कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या a by b। देन इट कैन बी रिटन एज रूट 2 is equal to a by b। and here where a and b are integers and b is not equal to 0, a and b have no common factor other than 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा कि a and b have no common factor other than 1। दैट मींस a और b ऐसे हैं 2 by 2 किसी से डिविजिबल नहीं है। अगर 4 by 6 है तो 2 4 2 3 6, ये इस फॉर्म का है। तो ये दोनों नंबर जो a by b है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है except 1। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद रूट 2 का क्या आ जाएगा 2, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दिस यहां पर हमें एक थ्योरम यूज करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दैट मींस 2 जो है डिवाइड करेगा a को, 2 divides a square and this, then 2 divides a, and so we write a is equal to 2n, क्योंकि a 2 का मल्टीपल है। and after this from 2 you put a is equal to 2n, and what you are getting 2n power of 2, this is 2b square, it is 2b square is equal to 4m square, and b square is equal to 4m square by 2, and b square is equal to 2m square, and 2 divides b square, and so 3 divides b, and so you can write that 2 divides both। अब देख रहे हो this time 2 divides b, 2 divides a, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था a and b have no common factor other than 1। So you can write here 2 divides both a and b, which is this, which is a contradiction। So our assumption contradiction जो हो गया, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है दोनों को, a और b को, जबकि a और b कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखता है। हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लर्न कर लो, तैयार कर लो। दिस टाइप क्वेश्चन आर कमिंग इन एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंट्राडिक्शन हो गया, तो जो मेरा एज्यूमशन था, एज्यूम किया गया कि रेशनल नंबर रॉन्ग है, so our assumption is wrong and that is root 2 is a rational number। And similarly you can write root 3। and how to write root 3, यहाँ पर आप वही समझेंगे, root 3 is, and after this you write 3, and what is this 3, and here is 3 divides a square, this 3 divides a, and you will write 3, this will be 3, and this will be 3, and this will be 3 b square, and 9, and what is, you can write 9 m square by 3, 3 is 9, this 3m square, and b square is equal to 3m square, so 3 divides b square, 3 divides b, and 3 divides both a and b, and then our assumption is wrong, so root 3 is the rational number। So you write it, and after this you are going to, after writing, तो आपको अगर ये प्रूव करना है कि root 3 is a rational number, तो after this you will write, आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। अब आप रूट 2 का हो गया, रूट 3, रूट 5, इसी प्रकार आप लोग रूट 7 को पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी है, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे जैसे स्टेप वाइज है। हम तो कह रहे हैं इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स लिख के रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्या है आप लोग खुद देखिए, पेज नंबर 1 point here 1.3 question number 1 already here is this is the question number 1 and you have done here. Now you are going for question number 2. Now let us see here question number 2. Prove that 3 plus 2 to 5 is a rational number. Let us assume 3 plus 2 to 5 is rational number. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 plus 2 to 5 अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a by b के फॉर्म में लिखने के लिए a by b where a and b are co-prime and b is never 0, so you will write 2 to 5 is equal to a by b, 3 will be here minus co-prime. What is the co-prime? Co-prime वही है कि a and b are co-prime, means that is a and b have no common factor, no common factor other than 1, other than 1. a और b एक के अतिरिक्त कोई और भी फैक्टर नहीं रखता है। इसका मतलब जैसे 2, 3, 4, 7, 4, 5 ये सबको प्राइम, लेकिन कोई किसी से डिविजिबल है सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बस ये ठीक हो माइंड आगे ये और भी को प्राइम का मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वाले में लिखवाया था जस्ट वही है और इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। नाउ आफ्टर दिस हियर 2 root 5 3 will be here a minus b and 2 root 5 this will be here b 3 by, so a by b rational number and so after subtracting 3 this whole number this number also is a rational number and 2 divide so a minus b, ये rational और ये rational, तो उसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। तो here a by b is rational and this implies a by b minus 3, that is a minus 3 by b is rational and this implies root 5 here a minus 3b and here is the 2 a minus 3b by 2b is also rational, that means a minus 3b by 2b square इसका मतलब root 5 is a rational, but which is a contradiction, which is a contradiction because root 5 is irrational, because root 5 is irrational and so 3 plus 2 root 5 is irrational. This is the proof. So after this, first, second and third, first I am doing, second and third, you have to do. So because there is no time, समय का प्रॉब्लम है, आप लोग ये कर दिया जा रहा है। So let us assume 1 by root 2 is a rational number, then
it can be written as 1 by root 2 is equal to a by b, where a and b are co-prime or co-prime and b is never 0. Co-prime आपको बताया गया था ना, किसी से डिविजिबल नहीं, a और b except 1, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड देन रूट 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूट 2 by 2 a by b, एंड हियर रूट 2 is equal to 2a by b, a by b is a rational number, then this implies 2a by b is also a rational number and root 2 is rational number। तो ये rational number हो गया, तो ये भी rational number होना चाहिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि कंट्राडिक्शन है, तो रूट 2 ही rational number होता है। यहाँ पर हम लोग रूट 2 इस को फार्मूला के रूप में यूज करेंगे, तो रूट 2 ही rational number है। सो व्हाट यू कैन से दिस 1 by root 2 इज कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब जो मेरा एजुकेशन था 1 by root 2 रेशनल नंबर वो रॉन्ग है, सो 1 by root 2 इज इरेशनल नंबर, मेरा एजुकेशन रॉन्ग है। और आप शॉर्टली इसको कर दीजिएगा, बहुत ही इजी है, वेरी मच इजी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, ए नंबर now decimal expression, you can see here revisiting rational number and their decimal expression. Rational number a number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। How many types? 2 types. पहला है टर्मिनेटिंग, सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस केस में हम देखेंगे 1 by 2 को चेंज करेंगे 0.5, 2 by, ये दोनों क्या है, तीनों टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में आपको क्या होगा, 0.5, 0.2, 0.7 एंड जिसका टर्मिनेट कर दिया 1.25, यहाँ पर 0.333, 0.1111, ये नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग अगले लेक्चर में, जब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि कब कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कब कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी हम आपको हिंट दे देते हैं थोड़ा के लिए कि अगर नंबर रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर दैट इज p by q, तो टोटली डिपेंड करेगा q पर। हम p और q को सॉल्व कर लेंगे और हम लोएस्ट फॉर्म में ला देंगे, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग q को ट्राई करेंगे कि q क्या प्राइम फैक्टर क्या है। अगर q के प्राइम फैक्टर में 2 पावर n और 5 पावर n आ रहा है, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसके केस में अगर कोई और आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। m and n is greater than or equal to 0। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।